میں کون ہوں اے ہم نفساں، سوختہ جاں ہوں، ایک آگ میرے دل میں ہے جو شعلہ فشاں ہے۔ لایا ہے میرا شوق مجھے پردے سے باہر، میں ورنہ وہی خلوتی راز نہاں ہوں۔ اس خلوتی کے راز نہاں سے شاید آج بھی پردہ نہ اٹھ سکے۔ یہ جانے اپنی ذات کی تلاش میں کہاں کہاں پھرتا رہا، کئی منزلیں آئیں گزر گئیں، میرٹھ، لکھنؤ، لاہور، راولپنڈی، کراچی، لندن، واشنگٹن، سفر در سفر، منزل در منزل، اور وہ جامد و ساکت ان بدلتے ہوئے مناظر کو تکتا رہا۔ لفظ اور آواز سے عشق کرنے والے اس بے نوا مسافر کے لیے شاید تمام الفاظ اور آوازیں صدا بصحرا ہوں، مگر یہ بھی سچ ہے کچھ پا لینے کا سودا، کوئی خلش، کوئی تپش لیے یہ آج بھی تشنہ لب ہے۔ یہ تہ در تہ شخصیت زندگی کی بہت سی منزلیں طے کر چکی ہے۔ تکلفات کی رداؤں میں لپٹا ہوا یہ شخص اپنے بارے میں کب گویا ہوا؟ نہ دماغ ہے کہ کسوں سے ہم کریں گفتگو غم یار میں، نہ فراغ ہے کہ فقیروں سے ہم ملیں جا کے دلی دیار میں۔ نہ چمن میں جاتے رہا ہے دل، نہ بنوں میں پھرنے لگا ہے دل، وہی بے کلی رہی جان کو رہے سیر میں نہ شکار میں۔ کہے کون صید رمیدہ سے کہ ادھر بھی بھر کے نظر کرے، کہ نقاب الٹے سوار ہے تیرے پیچھے کوئی غبار میں۔ پس غبار شخص تم کون ہو؟ ذرا سی دیر کو ٹھہرو، کچھ اپنی کہو۔ کیا کچھ مجھ سے پوچھا؟ مجھے ٹھہرنے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ میں تو کب سے ساکت ہوں، حرکت میں تو وقت ہے، کئی قرنوں سے وقت مجھ پر سے گزرتا جا رہا ہے، اور مجھے تو ایسا لگا جیسے میری ساری عمر خواب بنتے گزر گئی، انجانے لوگوں کے، موہوم منزلوں کے، گمشدہ راستوں کے۔ شاید میں اب بھی حالت خواب میں ہوں، خواب ہی خواب، کبھی جاگتی آنکھوں سے، کبھی بند آنکھوں سے، ادھوری تعبیریں، مبہم تماثیل۔ اب ان خوابوں کی الجھی ہوئی ڈور کا سرا کہاں سے تلاش کروں؟ اس کے لیے بھی تو ایک عمر چاہیے۔ خیر، جاگتی آنکھوں کے خواب سننا چاہتے ہو تو سنو، مگر دیکھو تم ان کی تعبیریں نہ ڈھونڈنے لگنا، ورنہ شاید میری طرح تم بھی کھو جاؤ گے۔ مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہیں، بات کبھی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہیں، جیسی خبریں تیری محفل
ने किया क्या जादू कि तबीयत मेरी मायर कभी ऐसी हो गई कि तबीयत मेरी मायर कभी ऐसी हो गई बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो नहीं जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो नहीं बात करनी मैंने पहली बार तो उस वक्त एक अनजानी दुनिया का ख्वाब देखा जब मैंने मेरठ के करीब एक छोटे से कस्बे धोलड़ी के कच्चे पक्के घर की दहलीज टगमगाते हुए कदमों से फलांगी थी। फासले के एतबार से मंजिल इतनी दूर न थी। फिर मेरठ की दरसगाहों से गुजरता हुआ अपने ख्वाबों की सरजमीन लखनऊ की सहरंगेज दुनिया में कदम रखा। लखनऊ यूनिवर्सिटी मेरे ख्वाबों की पहली मंजिल थी। ये उस जमाने की बात है जब लखनऊ यूनिवर्सिटी इल्म अदब का हकीकी मानों में गहवारा थी। क्या क्या कदावर शख्सियात थी। प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन, प्रोफेसर आले अहमद सरूर और कर्रार साहब, किस किस के नाम गिनवाऊं। उनकी बातें सुनता तो किसी और दुनिया में पहुंच जाता। तरक्की पसंदी का रंग भी उन्हीं के दुफैल मुझ पर चढ़ा। उर्दू अदब से अब तक मेरा जो अनमिट रिश्ता कायम है वो इन्हीं बुजुर्गों की देन है। ये शहर मेरे लिए एक तिलिस्माती बस्ती था। मुशायरे, महफिलें, पुररौनक बाजार और लखनऊ की यूनिवर्सिटी की हंगामा खेज जिंदगी। मगर जिंदगी को यहां भी करार कहां नसीब। ख्वाब मेरे ताक़ुब में थे। इन खुशरंग फजाओं से परे, दूर, बहुत दूर, मैं एक नई दुनिया के ख्वाब देख रहा था। ये ख्वाब था उस सरजमीन का जो मेरे जैसे लाखों नौजवान देख रहे थे। एक नई दुनिया बसाने का ख्वाब। लखनऊ और मेरठ से बहुत दूर किसी और दियार की तलाश। फिर मैंने अपने इस ख्वाब के ताक़ुब में खोखरा पार से गुजरकर उस सरजमीन पर कदम रखे जो अजनबियत के बावजूद अपनी अपनी सी लगी। यही तो था मेरा पाकिस्तान। कुछ देर सिंध में पड़ाव किया। नौडेरो फीरोज में बतौर उस्ताद रोजी रोटी कमाई। इस आर्जी क़याम के बाद कराची और सिंध के मुज़ाफ़ात से होता हुआ 5 दरियाओं की धरती तक पहुंच गया। ये लाहौर था। दरियाए गोमती के किनारों को छोड़कर किनारे रावी आबाद हो गया। अपने जमाने का यह खूबसूरत शहर सायादार दरख्तों में घिरी हुई शिमला पहाड़ी के ज़ेरे साया एक कोठी मेरा दफ्तर भी था और घर भी। ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर था
اور 1950 کی دہائی۔ ٹھہریے میں بتاتا ہوں۔ یہ لاہور ہے، یہ شملہ پہاڑی ہے۔ شملہ پہاڑی کے نیچے سے گزرتی ہوئی یہ سڑک گورنر ہاؤس کے گیٹ پر ختم ہوتی ہے، اور یہ بائیں طرف جو مکان ہے اس میں فیض احمد فیض، بیگم فیض اور ان کی 2 پیاری پیاری بچیاں سکونت پذیر ہیں۔ فیض کے مکان کے بالمقابل میاں فضل حسین کی کوٹھی ہے۔ اسی کوٹھی کو دوسری عالمی جنگ کے دنوں میں ریلوے اسٹیشن بنا دیا گیا تھا، جب سے آج تک حکومت پاکستان میاں فضل حسین کے خاندان کی کرایہ دار ہے۔ یہ سیاہ آہنی گیٹ ہے، اندر تشریف لائیے۔ یہاں یہ کوئی عام دفتر نہیں تھا، ادیبوں، فنکاروں اور ہنرمندوں کا ایک جمع غفیر تھا جو اس ایک چھوٹی سی عمارت میں یکجا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری منزل مجھے مل گئی ہو۔ سوچا یہاں میں اپنے نام کی لاج رکھ سکوں گا۔ مجھے واقعی اپنی ذات کے اظہار کا وسیلہ مل گیا۔ لاہور ریڈیو اسٹیشن کی اس عمارت میں کیسے کیسے نادر روزگار لوگ جمع تھے، سبھی اپنے اپنے فن میں یکتا۔ یہ سب اپنی آواز کا جادو جگا رہے تھے، اور میں ان سب آوازوں کے طلسم میں گرفتار ہو چکا تھا۔ یہ ڈائری ہے 1956، اور اس میں دن، تاریخ، عیسوی مہینہ اور ہجری سن اور ہجری مہینہ، تاریخ، اور انتہا یہ ہے کہ اس میں ہندی مہینہ پھاگن بھی لکھا ہے کہ یہ پھاگن کی 5ویں تاریخ تھی۔ تو یہ ڈائری بتا رہی ہے کہ کم از کم 16 فروری 1956 عیسوی جمعرات کا دن اور رجب کے مہینے کی 3 تاریخ، وہ دن اور آج کا دن میں تسلسل کے ساتھ اظہار کاظمی کو جانتا ہوں۔ میرے خیال میں یہاں اس واشنگٹن ایریا میں جتنے طویل عرصے سے میں اظہار صاحب کو جانتا ہوں، اتنے طویل عرصے سے نہ شاہدہ بھابھی جانتی ہیں، اور نہ سبطین، اور نہ دوسرے بچے، اور نہ اس میٹروپولیٹن ایریا کا کوئی اور شخص جانتا ہے۔ تو خیر یہ ڈائری تو 1956 کی ہے، لیکن میں 1955 کی سردیوں میں سب سے پہلے اظہار کاظمی سے ملا تھا، تو سیاہ سج کی شیروانی اور تنگ پاجاموں کا علی گڑھ والا پاجامہ، اور بہت ہی ہینڈسم آدمی سے اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی۔ تو 1955 دسمبر 1955 میں پہلی ملاقات ہوئی تھی، اور ان دنوں ایک سیریز شروع کی گئی تھی، شگفتہ قسم کے ایک لائٹ ٹاک تھی، کیا مصیبت ہے، تو وہ میں لکھا کرتا تھا، اور اظہار کاظمی اس کے پروڈیوسر تھے۔ تو اس وقت سے میں اظہار کاظمی کو جانتا ہوں۔ ان کی پوری شخصیت نے مجھے متاثر کیا۔ ان کی آواز ایک ایسے کلچر کی نمائندہ ہے جو اب مٹتا جا رہا ہے۔ اتنی خوبصورت گھنیری مردانہ آواز براڈ کاسٹنگ کے لیے موزوں ترین آواز تھی، اور اظہار کاظمی سے جیسے جیسے مراسم بڑھتے گئے مجھے یہ احساس ہوا واضح طور پر، جو آج بھی قائم ہے، کہ یہ شخص پیدا ہی ہوا تھا براڈ کاسٹنگ کے لیے۔ ان ادیبوں، فنکاروں، صداکاروں، گلوکاروں، موسیقاروں اور پیشکاروں کے نام گنوانے شروع کروں تو جانے کتنے گھنٹے گزر جائیں گے۔ اور پھر یہیں مجھے ڈرامے نے اپنی طرف اچانک اور چپکے سے کھینچ لیا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اور کیسے میں تمثیل کی دنیا میں داخل ہو گیا، اور الفاظ و آواز کے سحر میں گرفتار ہو گیا۔ یہاں میں نے رفیع پیرزادہ صاحب کو ڈرامہ بولتے اور پروڈیوس کرتے دیکھا، موہنی حمید کی نقرئی آواز سنی،
आफताब अहमद और सुल्तान खुसट को माइक्रोफोन से खेलते देखा, कागज पर लिखे हुए अल्फाज को हवा के दोष पर मोतियों की तरह बिखरते देखा। मैं भी इस बहते दरिया का एक कतरा बन गया। मेरे साथ काम करने वाले बुजुर्ग और रफीक अब भी मेरी यादों में जिंदा हैं। मालूम नहीं उन्हें मैं याद हूं भी कि नहीं। शायद अब भी कोई मुझे याद कर रहा हो। ये किसकी आवाज कान में आई? मैं बरसों पहले रेडियो पाकिस्तान की मुनाजरत में आया तो जिन नामवर ब्रॉडकास्टर के नाम मैंने सुने उसमें इजहार काज़मी का नाम भी था। उसमें ज़ैद बुखारी और महमूद निज़ामी और इम्तियाज़ अली ताज और रफ़ी पीर और अंसार नासरी, ये तो बड़े बुज़ुर्ग ब्रॉडकास्टर थे, लेकिन इनमें इजहार काज़मी निस्बतन बहुत बाद में आने वालों में से थे। आज़ादी के बाद उन्होंने अपनी ब्रॉडकास्टिंग की ज़िंदगी का आगाज़ किया, लेकिन वो भी उस दर्जे पर उस वक्त पहुँच चुके हुए थे कि उनको जब आप अच्छे ब्रॉडकास्टर्स का नाम लेते थे तो इनका नाम उसमें शामिल होता था। रेडियो से उनका ताल्लुक बहुत पुराना है। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान के लिए और बाद-ए-ज़ां टेलीविज़न के लिए भी हर किस्म का काम किया है। उनके लिखे हुए बाज़ ड्रामे टेलीविज़न पर बेहद मकबूल हुए और उन्होंने कंपेयरिंग भी की जिसमें बेशुमार टेलीविज़न के मकबूल प्रोग्राम शामिल हैं। हमारे इलेक्शन के दिनों में इलेक्शन ट्रांसमिशन में उन्होंने मास्टर कंपेयर का रोल अदा किया और सारे पाकिस्तान में उनका शोहरा हुआ इस बात से। उनकी बहुत सी खुसूसियात हैं और बहुत सी उनमें ऐसी चीज़ें हैं जिसका जिक्र किया जाए तो बड़ा तवील वक्त चाहिए, लेकिन एक छोटी सी बात जो मुझे हमेशा बड़ी अपील करती है और मैं इज़हार को शायद मैंने कहा भी हो या मैं कहना चाहता हूँ कि जिस अंदाज से वो शेर पढ़ते हैं और जो उनकी आवाज़ का जो लोच है और उनकी आवाज़ में जो एक कशिश है और ख़ास मध्यमपन है और एक ख़ास तहजीब है, कल्चर है उसमें, वो मैंने किसी और में नहीं देखा। बड़े बड़े अच्छे तहतुल लफ्ज़ पढ़ने वाले मैंने देखे, लेकिन उसका तासुर जो उनका है, उनकी एक नज़्म उन्होंने पढ़ी थी कभी, पता नहीं अल्लामा इकबाल की मस्जिद करतबा, वो आज तक यकीन करें मेरे दिल पर नक्श है। आबे रवाने कबीर तेरे किनारे कोई देख रहा है किसी और ज़माने के ख्वाब। जो गुजरी मुझ पे मत उससे कहो हुआ सो हुआ, बला कशाने मोहब्बत पे जो हुआ सो हुआ। फ़न की ज़िंदगी है, ख़ासतौर पर रेडियो, उसमें मैं समझती हूँ कि उनका मुझे उस्मा गिलानी बनाने में रेडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से काज़मी साहब का बहुत ज़्यादा, और वैसे भी जिस वक्त मैं दाखिल हुई हूँ रेडियो पर तो उस वक्त स्टेशन डायरेक्टर थे काज़मी साहब। कहाँ के? लाहौर रेडियो स्टेशन। और एक इतनी मतलब बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है काज़मी साहब। एक हैंडसम, एक खाली हैंडसम होते हैं, शक्ल अच्छी नहीं होती, खूबसूरत हैंडसम, खुश लिबास, खुश गुफ्तार, और एक मलाहत उनकी शक्ल के ऊपर ऐसी थी, ऐसी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत दिन हो गए देखे हुए, इसलिए मैंने ये कहा कि क्योंकि मैं बात कर रही हूँ बहुत पुरानी, तो कि एक जैसे ही आदमी उनके सामने बैठे, जो मेरी अपनी फीलिंग्स हैं वो मैं बता रही हूँ, जैसे ही उनके क्रॉस द टेबल उनके पास बैठे तो एक बहुत ही अपनाइयत का एहसास होता है और रिलैक्स कर जाता है आदमी। रेडियो वॉइस या रेडियो राइटर या रेडियो ऑफिसर बड़े स्टेटस के, वो तो एक अपनी जगह पर है, बहैसियत इंसान और ब्रॉडकास्टर तो खैर वो नहीं, तो क्या बता सकते, बहैसियत इंसान, बहैसियत दोस्त, मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम काज़मी साहब कहा करते थे और ऑटोमेटिकली काज़मी साहब के साथ एक अजीब तरह की जो उनसियत हुई तो ऑटोमेटिकली शाहिदा भाभी को शाहिदा भाभी कहना शुरू कर दिया। ये बहुत कम होता है। अमूमन जो हमारे ख़ासतौर पर जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, हमारे कॉलीग्स होते हैं,
उनको आपकी वाइफ या बाय नेम या मिसेस काज़मी इस तरह के खिताबात अलकाबात दिए जाते हैं। लेकिन ये ऐसा रिलेशनशिप डेवलप हुआ कि एकदम से हमने शाहिदा काज़मी को शाहिदा भाभी कहना शुरू कर दिया, और आज तक काज़मी साहब को तो काज़मी साहब ही कहा जाता है, लेकिन शाहिदा भाभी को हम बहुत ही प्यार से, और वही फीलिंग्स होती हैं मुझको दोनों इस कपल से, जैसे कि बहुत वसीयत मेरी अपनाइयत है। ड्रामे के साथ मौसीकी का शौक भी लाहौर स्टेशन का तोहफा है। उस जमाने में क्या क्या लोग वहां जमा थे। गजल हो या गीत, क्लासिकी हो या नीम क्लासिकी मौसीकी, हर फन में यकता। ये फहरिस्त भी तवील है। लाहौर में सर फजल हुसैन की कोठी से निकला तो रावलपिंडी में पेशावर रोड पर सांपों वाली एक खंडर नुमा बिल्डिंग में डेरा डाल दिया। ये रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी था। 1960 की धाई। सरकारी अफसरों की आमद अभी शुरू नहीं हुई थी। हल्क़े अहबाब महदूद था। मेरी जिंदगी का ये यादगार मोड़ है। यहीं शाहिदा से मुलाकात हुई। उस जमाने में पिंडी स्टेशन पर उनकी सदाकारी की धूम थी। मुझ पर भी उनकी आवाज का जादू सर चढ़कर बोला, और मैं सेहरा बांधे रावलपिंडी के कदीम गुंजान आबाद इलाके राजा बाजार के जिलों में वाक़े वसीओ आरीज और लको दक हवेली यानी बाग सरदारा जा पहुंचा। मेरे रोजो शब तब्दील हो गए, शायद जिंदगी के तौर तरीके भी। फिर शादी के थोड़े अरसे बाद मेरा तबादला पेशावर हो गया। मेरे लिए ये फारिग बुखारी और अहमद फराज का शहर था। अहमद फराज भी कैसा बांका, सजीला, खुश मिजाज नौजवान था। उस जमाने में रेडियो उसका ओढ़ना बिछोना हुआ करता था। सुनो इजहार, क्या हाल है तुम्हारे? असल में तो मुझे आना था, लेकिन कुछ देर हो गई बीच में। कुछ ऐसे एपिसोड हुए कि अमेरिका में आना नहीं हुआ, और अमेरिका आने से एक मकसद तुमसे मुलाकात भी होती है, जो आपके काफ़ी वक्त हो गया कि मुलाकात नहीं हुई, ना आपसे ना फैमिली से। बहरहाल मुझे उम्मीद है तुम लिखने पढ़ने का काम अपना जारी रखे हुए हो गए, क्योंकि सबसे बेहतरीन मसला यही है कि जब आप नौकरियों की लानतें और तौक़ उतर जाएं गले से, और थोड़ा सा अपने लिए वक्त मिल जाए, तो बेहतरीन उसका मसरफ़ यही है कि अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी के ख़ास हालात, जहाँ जहाँ चराग़ जल रहा है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी तो कौन खबर कर सकता है, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो उम्र के किसी हिस्से में भी भूलते नहीं। तो अब मैं बल्कि मुझे याद आया कि अफजल ने जब मुझसे कहा तो मैंने कहा सबसे पहला मुझे वाक़या तो ये है कि उनसे इजहार ने सबसे पहले मेरा कॉन्ट्रैक्ट रेडियो के लिए कराया था, मेरी गज़लें नज़में करने, और उन दिनों 4 आने, 8 आने, 12 आने इसका रेट होता था गज़ल गाने का, और ₹1 में हफीज़ जलंधरी, इकबाल, ये लोग बड़े लोग आते थे। लेकिन 12 आने में मुझे उन्होंने रखा, तो मुझे बड़ी खुशी भी हुई। हालांकि 12 आने क्या चीज़ है, लेकिन उससे ये है कि किस ग्रेड में रखा उन्होंने। दूसरी बात ये कि धीमापन तुम्हारा मुस्कुराना, तुम्हारा हर मामले में बहुत कैजुअल, बड़े से बड़े मसले को कैजुअली लेना। अहमद फराज की मशक़ सुखन अपने अहद शबाब में थी। शोहरत उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। कलाम कबूल आम का दर्जा हासिल कर रहा था। शोला था जल बुझा हवाएं
चल बुझाऊं जो जहर आवाज का सफर जारी रहा। पेशावर से दाना पानी उठा तो लंदन की राह पकड़ी। बीबीसी की उर्दू सर्विस के लिए मुझे बल्कि मेरी खिदमात को मुस्तार लिया गया। लीजिए साहब, मेरी जिंदगी का एक और दौर तमाम हुआ। लंदन का कयाम भी एक भूली बिसरी दास्तान बन चुका है। बीबीसी अपनी जात में एक दुनिया लिए हुए था। खबरें और हालात हाजरा के अलावा भी इस इदारे का अपना एक सकाफती मिजाज था। यहां मैंने ज़िया मोहिउद्दीन के साथ उर्दू का स्टेज शो किया। अदब दोस्तों का मखसूस हल्का कुछ न कुछ करता ही रहता था। फिर वहां से वापसी के बाद जब रावलपिंडी आया तो इस शहर की काया ही पलट चुकी थी। अब यह शहर एक सरकारी दरबारी शहर बन चुका था और मैं भी एक अदना सा अफसर। हाँ, ये वही जमाना था जब पाकिस्तान टीवी नया नया शुरू हुआ था। सारे रेडियो वाले वहां जमा हो रहे थे और साथ साथ रेडियो की रकाबत का सिलसिला भी जारी था। छुपते छुपाते मैं भी चकलाला वाली टेलीविजन की इमारत तक जा पहुंचा। दफ्तर वाले हस्ब दस्तूर मुखालिफ,
मगर मैं भी जिद्दी तबीयत। खैर, ये एक अलग कहानी है। 65 की जंग हो चुकी थी। भुट्टो की सहारंगेज शख्सियत सियासत के मैदान में अपने झंडे गाड़ रही थी। मैं भी उनके मद्दाहों में शामिल हो चुका था। लखनऊ में तरक्की पसंदी का जो सबक मिला था वो फिर याद आने लगा। अब 70 की दहाई शुरू हो चुकी थी। रेडियो को कॉरपोरेशन बनाने की तहरीक शुरू हो चुकी थी। हम फिर ये समझे कि चलो सरकारी दफ्तर शायद फिर एक सकाफती इदारा बन जाए। लेकिन रेडियो कॉरपोरेशन तो बन गया, मगर दफ्तरी माहौल तब्दील ना हुआ। कैसी कैसी खुशफहमियों में गिरफ्तार रहा। इसी तरह की कैफियत लाहौर और कराची स्टेशनों की सरबराही के मौके पर हुई। आरजुओं और तमन्नाओं के ढेर सारे मंसूबे लिए वहां गया, मगर अंजाम वही के धुआं सा जब नजर आया सवाद मंजिल का, निगाहे शौक से आगे था काफला दिल का। दश्त तन्हाई में ऐ जान जहां लर्ज़ा है तेरी आवाज़ के साए, तेरी होठों की दश्त तन्हाई में दूरी की खसो खाक तले खिल रहे हैं तेरी पहलू के समन और गुलाब। दश्त तन्हाई में ऐ जान जहां लर्ज़ा है तेरी आवाज़ के साए, तेरी होठों के सराय। दश्त तन्हाई में दूरी के खसो खाक तले खिल रहे हैं तेरी पहलू के समान और गुलाब। सोचा कि फिर वापस उसी शहर में चलते हैं जो सभी का क़िबला बन चुका था। ब्रॉडकास्टिंग एकेडमी इस्लामाबाद की सुनसान और आजाद जिंदगी। इस्लामाबाद के पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग हाउस के सदर दफ्तर की फाइलों में घिरी हुई बेकैफ सुबह और शामें, कभी हलचल और कभी वही सुस्त रौ दफ्तरी जिंदगी। मगर मेरी जिंदगी को करार कहां। एक और हिजरत सर पर आन खड़ी थी। अब के इरादा 7 समंदर पार का था। 80 की दहाई का चौथा साल। वॉइस ऑफ अमेरिका से बुलावा आ गया और यूं मेरठ, लखनऊ, कराची, लाहौर, लंदन, रावलपिंडी से होता हुआ वॉशिंगटन आ पहुंचा। खबरें, हालात हाजरा, तर्जमा। मेरे साथ कुदरत कई बार ये मजाक कर चुकी थी, मगर मैं भी कब बाज आने वाला था। कुछ अहबाब भी मिल गए। और कुछ नाखुशी की बात है कि काज़मी साहब के एजाज़ में कुछ बातें करूं, क्योंकि मैं अभी दफ्तर से आया हूं और मैं अपने घर पे बैठा हुआ हूं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग आई रियली मिस मिस्टर काज़मी। वो अच्छी तरह याद है कि एक रोज़ चंद महीने हुए वो हमारे दफ्तर में तशरीफ लाए
اور ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا اور انہوں نے کچھ نہیں کہا. میں نے اس کاغذ کو دیکھا اور پھر میں نے ان کے آنکھوں میں دیکھا اور ایک دم ہم دونوں رونے لگے اور گلے لگے. It was a very special moment because تقریباً 19 سال میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا. میں اردو سروس کا نالائق سربراہ رہا اور رہتا ہوں. اور اس دوران میں تو ہمارے بہت ہی ہماری میں اس کو دونوں دوستداری کہہ سکتا ہوں اور پروفیشنل لائف کہہ سکتا ہوں. چند خاص پہلو رہے. And at that time I said to him that I think the Urdu service کا جو cultural مرکز ہے ابھی جا رہے ہیں آپ. And so we had a good cry and then started laughing. And قاسمی صاحب کی چند خاصیت کہیں. It's been a long administrative day in the office and my Urdu is a little bit fumbly, so معاف کیجیے گا. لیکن I was always very impressed that یعنی وہ دونوں اردو اور ادب اور تہذیب کا عاشق رہا لیکن وہ بھی اور عالم بھی رہے لیکن وہ بھی ایک حد تک طالب علم رہے. یعنی تمام اردو سروس کے لوگوں میں سے he was the one who was always first to ask his colleagues, now how would you translate this? What's the best meaning of this? He had this wonderful combination of adventure and inquiry and humility. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اظہار کاظمی صاحب کا وجود ہمارے درمیان بالکل یوں سمجھ لیں کہ باعث خیر و برکت ہے. اور یہ میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں, کوئی رسمی بات نہیں ہے. اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ کاظمی صاحب ہمارے درمیان ایک جیتا جاگتا خزانہ ہے اور وہ خزانہ علم کا اور سخن کا دونوں کا خزانہ ہے. انہوں نے براڈ کاسٹنگ میں اپنی زندگی کے میرے خیال میں کم سے کم 40 یا 50 برس, شاید 50 سے بھی زیادہ گزارے ہوں گے. اور انہوں نے جو کچھ سیکھا ہے براڈ کاسٹنگ میں اور اس کے علاوہ ان کا جو گہرا مطالعہ ہے ادب کا, ان دونوں چیزوں سے ہم مستفیض ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ہوتے رہیں. لکھنے پڑھنے کا مشغلہ بھی جاری رہا. یہاں کی ادبی سرگرمیوں کا اپنا ہی ایک رنگ ہے. شاعری سنتا بھی تھا اور پڑھتا بھی. اردو شاعری کی داستان خاصی ڈرامائی رہی اور اسی نے مجھے غزل کی کہانی کہنے پر اکسایا. غزل کی کہانی کے بارے میں ایک بات اور بتا دوں کہ یہ ایک ٹرینڈ سیٹر تھا واشنگٹن میں, ایٹ لیسٹ جہاں تک مجھے معلوم ہے. اس کے بعد کچھ علی گڑھ کے لوگ تھے یہاں پہ جو اس کا ٹیپ لے گئے اور دہلی میں اسی طرز پر قمر رئیس صاحب نے ایک غزل کے سفر کے نام سے ایک اسکرپٹ لکھا جس کا نیریشن کیفی اعظمی صاحب نے کیا تھا. پھر کیفی صاحب نے اسی کو تقریباً ایک اسکرپٹ لکھا جو ایئر انڈیا کے لیے تھا, جہاں ہم نے شاعروں پہ امفیسس دی تھی. کیفی صاحب کی امفیسس جو تھی وہ گائکی پہ تھی اور جو لوگ گا رہے تھے ان کا انٹروڈکشن زیادہ تھا شاعروں سے, لیکن تقریباً باقی چیزیں جو تھی اس کا یعنی جو تسلسل تھا وہ اسی طریقے سے تھا. تو غزل کی ایک ٹرینڈ سیٹر چیز تھی جو بہت بڑی, میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے. اور اس میں اسکرپٹ جس نے بھی پڑھی ہے یا جس نے بھی دیکھا ہے وہ ایک ایک جملہ اس کا تقریباً اس میں ایک ایک تاریخ چھپی ہوئی ہے. یہ کہانی واقعی بہت دلچسپ ہے, تھوڑی سی آپ بھی سن لیجئے. غزل کے لباس میں اردو شاعری کا حسین ترین روپ اپنے پورے جوبن پر نظر آتا ہے. غزل کا ہر شعر اپنی جگہ مکمل ہوتا ہے اور 2 مصروں میں ایک پورا مضمون ادا ہو جاتا ہے. اس لیے گانے والا اور سننے والا دونوں اس سے برابر کے لطف اندوز ہوتے ہیں.
वस्ल की राहतों और हिज्र की कुल्फतों के जिक्र से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन वक्त के गुजरने के साथ गजल का दामन भी वसी होता चला गया और अब ये आलम है कि गमे जाना और गमे दौरां के तमाम रंग गजल के पैमाने में छलकते दिखाई देते हैं। बस के हर एक उनके इशारे में निशान और करते हैं मोहब्बत तो गुजरता है गुमा और यार अब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़बान और हर चंद सुबुक दस्त हुए बुत शिकनी में हम हैं तो अभी राह में हैं संगे गरां और गजल की कहानी भी जारी है और मेरी कहानी भी। मंजिल की जुस्तजू अब भी है, शायद अब सारे रास्ते मेरी अपनी जात में गुम होते जा रहे हैं। सरकारी मुलाजमतों की कैदोबंद से आजाद हो चुका हूं, मगर ये सवाल मेरे ताक़ुब में है कि मैं कौन हूं। मैं वो तो नहीं हूं जो इस वक्त हूं, तो फिर इस्तकबाल कीजिए उस शख्स का कि जिसके लिए हमने आज की शाम सजाई है, जो हम सबको बेहद अजीज है। हम सब आपके लिए दुआगो है। आप अपना सफर जारी रखें। आज की शाम ही नहीं, हमारी सारी सुबहें और शामें आपके नाम हैं। आज की शाम इजहार के नाम। अपने इर्द गिर्द नजर डालिए, ये सारे चेहरे आपके जाने पहचाने और आपके अपने हैं। सुनिए, ये सब आपसे क्या कह रहे हैं। सुनिए सुनिए, रुकिए नहीं, चलते जाइए। अपने ख्वाब सुनाते रहिए। इतने लोग जमा हो गए साहब, मैं काबिल कहा। मुझे हैरत होती है कि मैं तो इतनी तारीफ और तौसीफ का किसी सूरत में सजा रहा हूँ। ये सब कुछ इसके बाद तो मैं जीने का हौसला हो गया। चाहता है कि एक एक से अलग अलग मिलके पूछूं क्या ये बात वाकई सच है। बहुत बहुत
खास तौर से आपका क्या नाम है? हुमायूं। क्या वाह वाह, शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत। और मैं ये बताइए कि किस सूरत से आप लोगों का कैसे शुक्रिया अदा करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। ड्रामा चला Future, Abu! Future. Do something for the future. Don't give up. तो मेरा ख्याल है एक काम तो आप ये करें कि बस मुख्तसर से ही 300, 250, 400 सफ़े की एक अपनी रेडियो से लेकर वॉइस अमेरिका तक। अब भी लोग आपको याद करते हैं, रेडियो के पुराने लोग आपको भूले नहीं हैं, हम लोग आपको भूले नहीं हैं, हम आपको याद करते हैं और आपके वेल विशर हैं। मैं इजहार साहब को मुबारकबाद कहता हूँ कि वो रिटायर हो गए और ये एंजॉयमेंट का वक्त है। उनके माशाल्लाह उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों के बच्चे हैं, उनमें भी वक्त गुजारें, लेकिन लिखने से कभी गाफिल न रहें और बहुत अच्छी याददाश्तें दुनिया को मुहैया करें। कि वो अपनी जितनी दिल की भड़ास है जिसको वो रुके हुए थे काम की मसरूफियात की वजह से, अब उस पर वो लग जाएं और ताकि हम लोग भी उनके मुताले से इस्तिफादा हासिल कर सकें। कि आप अपनी तो ये मत समझें कि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो आप रिटायर हो गए हैं तो आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई, वो सवाल ही पैदा नहीं। क्रिएटिव आदमी तो अपनी आखिरी सांस तक, बल्कि मैं तो ये समझती हूँ क्रिएटिव आदमी मरता भी बड़ा क्रिएटिव स्टाइल में। हम क्रिएटिव लोग हैं नहीं जब तक जिंदा हैं, जब तक हम क्रिएटिव हैं, बस ख़त्म। Adabu, this is Eliza, and happy retirement. Adabu, this is Cheyenne, and happy retirement. And I think you should take a vacation with all of the cousins, and maybe you can take a break. And maybe my mom can come with us and do everything, and you don't have to do any work. Get off this, Abu. I love you. I want to say Adab Abu. This is Shazday, and happy retirement. I don't know how to say that. Abu, I want you to change me some Urdu. I want a happy day for you. I love you, Abu. Happy retirement. I love you. इजहार काज़मी जारचे के रहने वाले थे और इनके वालिद का नाम इश्तियाक हुसैन था। सलामत रखे और खुश खुर्रम रखे। वो बहुत भले आदमी हैं और पढ़े लिखे आदमी हैं।